رات کے اندھیرے میں جب وائٹ ہاؤس کے خفیہ کمرے میں نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کا ہنگامی اجلاس جاری تھا تو امریکی صدر خاموشی سے ایک دیوار پر نصب سکرین کو گھور رہے تھے۔ اس سکرین پہ ایک اینیمیٹڈ نقشہ چل رہا تھا جس میں بحر الکاہل کی گہرائیوں سے نکلتے چینی ہائپرسونک میزل دکھائے جا رہے تھے جو صرف چند منٹس میں امریکی سرزمین کو چھونے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ دوسری طرف شمالی قطب سے روسی شیٹن 2 نامی بین البراعظمی میزائل کی روٹ لائن دکھائی گئی جو بیک وقت کئی وار ہیڈز کو امریکہ کے مختلف شہروں پر برسانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کمرے کی فضا میں تناؤ بڑھ چکا تھا اور صدر کے چہرے پر ایک ہی سوال واضح تھا کہ کیا ہمارا دفاع واقعی محفوظ ہے؟ یہ سوال صرف حکومتی اجلاسوں، پینٹاگون کی بریفنگ رومز تک محدود نہیں رہا، بلکہ پینٹاگون کے سائبر ونگز، اسپیس کمانڈ، نیول انٹیلیجنس اور ڈارپا جیسے تحقیقی ادارے بھی اس سوال کے گرد مسلسل تحقیق کر رہے ہیں کہ کیا امریکہ آج بھی وہ ناقابل تسخیر قلعہ ہے جو دنیا اسے سمجھتی ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ چین اور روس دونوں اپنے دفاعی اور حملہ آور صلاحیتوں میں حیران کن تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ چین کا DF-27 ہائپرسونک میزائل جو امریکی دفاعی شیلڈز کو چکما دے کر اپنے ہدف تک پہنچنے کی مشقوں میں کامیاب بھی رہا، اب امریکی پالیسی سازوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ اسی طرح روس کے S-500 دفاعی نظام اور ہائپرسونک ایون گارڈ گلائڈ وہیکلز کو نہ صرف امریکہ کے موجودہ دفاعی نظام کے لیے چیلنج بلکہ اس کی نفسیاتی برتری کے لیے بھی خطرہ تصور کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کے اعلان کردہ گولڈن ڈوم منصوبے کے پیچھے دراصل یہی غیر اعلانیہ خوف کار فرما ہے کہ آئرن ڈوم جیسے دفاعی نظام جنہیں پہلے بے مثال سمجھا جاتا تھا، حالیہ برسوں میں حزب اللہ، حماس اور یمن سے ہونے والے مسلسل حملوں کے دوران کمزور ثابت ہوئے۔ اسرائیل کا جدید ترین نظام بھی ہزار راکٹس کے طوفان میں مکمل تحفظ نہیں دے سکا، اور دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ فضائی دفاعی چھتری کا تصور کتنا بے بس ہو سکتا ہے جب حملے ایک وقت میں کثیر جہتوں سے ہوں۔ امریکہ جانتا ہے کہ اگر کل کو چین یا روس نے اسی طرز پر کثیر النوع اور مشترکہ حملہ کیا تو آئرن ڈوم جیسے نظریات کافی نہیں ہوں گے۔ اسی پس منظر میں گولڈن ڈوم صرف ایک میزائل ڈیفنس سسٹم نہیں بلکہ ایک نفسیاتی اعلان ہے کہ امریکہ اپنے دفاع میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے، خواہ اسے خلا کو ہتھیار بنانا پڑے یا آواز سے کئی گنا تیز میزائلوں کو آسمان میں ہی روکنا پڑے۔ مگر سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ کیا وقت کے ساتھ یہ قلعہ مضبوط ہو رہا ہے یا دراڑیں پڑنے لگیں، اور کیا واقعی واشنگٹن کی راتیں اب پہلے جیسی پرسکون نہیں رہیں؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، یہ خبر بظاہر ایک ٹیکنالوجیکل پیش رفت کا اعلان لگتی ہے، لیکن اگر اسے باریکی سے دیکھا جائے تو کئی سنجیدہ اشارے چھپے ہوئے ہیں۔ گولڈن ڈوم جو بظاہر ایک چمکتا دمکتا نام ہے، دراصل ایک ایسی ڈھال کا تصور ہے جو زمین سے نہیں بلکہ خلا سے آنے والے خطرات کو بھی روک سکے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ یہ نظام ان کے دور صدارت کے خاتمے سے پہلے تیار ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظام صرف دفاع کے لیے ہے یا مستقبل کی خلائی جنگوں کا ایک خاموش آغاز ہے؟ 175 ارب ڈالر کی لاگت اور صرف ابتدائی مرحلے میں 25 ارب ڈالر مختص کرنا اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ صرف زمینی سرحدوں پر نہیں بلکہ خلائی دائرے میں بھی اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے بے چین ہے۔ پینٹاگون پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ موجودہ نظام روس اور چین کے جدید میزائلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو کیا یہ گولڈن ڈوم صرف ایک ٹیکنیکل منصوبہ ہے یا عالمی طاقتوں کے درمیان ایک نئے ہتھیاروں کی دوڑ کا آغاز؟ یہ منصوبہ ہمیں بتاتا ہے کہ اب جنگ صرف زمین پہ نہیں بلکہ خلا کی خاموش بلندیوں میں بھی لڑی جائے گی، اور ٹرمپ کی یہ سنہری ڈھال چاہے کامیاب ہو یا نہ ہو ایک ایسی دنیا کا اشارہ ضرور ہے جو مزید غیر یقینی، مزید مہنگی اور مزید خطرناک ہوتی جا رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اوول آفس میں بڑے اعتماد سے کہا کہ ایسا کوئی جامع دفاعی نظام آج تک موجود ہی نہیں تھا تو گویا ایک طویل خاموشی کو توڑا۔ اس کے الفاظ میں محض دعویٰ نہیں، ایک عالمی حقیقت کا اعتراف بھی تھا کہ اب تک دنیا نے جتنے بھی میزائل ڈیفنس سسٹمز دیکھے وہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے، محدود تھے اور ہمیشہ کسی نہ کسی ممکنہ کمزوری کے سائے میں کھڑے تھے۔
गोल्डन डोम सिर्फ एक नया मंसूबा नहीं बल्कि एक नई सोच का ऐलान किया गया कि दिफा सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं रह सकता, उसमें समुंदर की गहराइयां भी शामिल होंगी, खला की बुलंदी भी होगी। अमेरिकी स्पेस फोर्स के जनरल माइकल ग्वेटलन को इस मंसूबे की निगरानी सौंपना एक अलामती फैसला भी है, क्योंकि अब जंगों की तैयारी के मरकज खलाई दफ्तरों में मुंतकिल हो चुके हैं और खला में सेंसर्स और इंटरसेप्टर्स की तैनाती का मतलब यह है कि अमेरिका न सिर्फ मिसाइलों को रास्ते में मार गिराएगा बल्कि शायद उनके इरादों को भी वक्त से पहले पढ़ने की कोशिश में लगेगा। ये वो जगह है जहां टेक्नोलॉजी और हुक्मरानी, साइंस और सियासत एक नई किस्म की ताकत में जम हो रहे हैं। और जब कनाडा जैसे हमसाये भी इस मंसूबे का हिस्सा बनने को बेताब दिखाई दें तो यह वाज़ेह हो जाता है कि यह सिर्फ अमरीकी मफाद का मंसूबा नहीं रहा बल्कि यह मगरिब के इज्तिमाई दिफाई रवैये का नया बयानिया बन चुका है। बिली बेयर का यह कहना है कि यह कनाडा के कौमी मफाद में है। ये दरअसल वही पैगाम है जो दुनिया के बाकी इत्तेहादियों को भी समझने की ज़रूरत पड़ जानी है कि मुस्तकबिल की जंगें कौमी सरहदों पर नहीं खला में तय होंगी और वहाँ सिर्फ वही बचेगा जो वक्त पे तैयार होगा। और डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि गोल्डन डोम दुनिया के किसी भी कोने या हत्ता के खला से दाखे गए मिसाइल को भी रोक सकेगा, ये सिर्फ एक दिफाई मंसूबे का ऐलान नहीं बल्कि आलमी ताकत के नए तसव्वुर की बुनियाद रखी जा रही है। और इस ख्याल की अमली शक्ल ये है कि मुस्तकबिल की जंगें सिर्फ ज़मीनी नहीं होंगी, आसमानों के पार खला की खामोश राहदारियों में भी लड़ी जाएंगी और अमेरिका पहले से वहां मौजूद होना चाहता है। ये मंसूबा जो है ये इजराइल के मारूफ आयरन डोम से मुतासिर ज़रूर है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वसी, तेज़ और ख़तरनाक हमलों के लिए तैयार किया जा रहा है। आयरन डोम रॉकेट्स और कम फासले के हमलों से बचाव के लिए मशहूर है, जबकि गोल्डन डोम जो है हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे जदीद हथियारों और खलाई हमलों तक का तोड़ निकालने का दावा कर रहा है। ट्रंप की बात कि इस निज़ाम की कामयाबी की शरह तकरीबन 100% है, ये एक सियासी दावा ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये बताता है कि अमेरिका इस निज़ाम को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक नाकाबिल तस्खीर ढाल के तौर पर पेश करना चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी वजारत दिफा ने इस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर एक मरकजी कमांड के तहत लाने का फैसला किया। यानी अब दिफाई रद्द-ए-अमल कहीं बिखरा हुआ नहीं होगा बल्कि एक दिमाग, एक कमांड और एक वर्जन के तहत होगा। और ये पूरा खाका सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, एक पैगाम है कि जिस दुनिया में मिसाइलों की रफ्तार आवाज़ से भी तेज़ हो चुकी हो, वहाँ तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ ताकत से नहीं, ज़हानत, पेशगी, तैयारी और खला में बरतरी से मुमकिन है। और अमेरिका अब अपनी फ़ज़ाओं तक महदूद नहीं है, पूरी कायनात को अपनी दिफाई छतरी के नीचे लाना चाहता है। इस ज़मन के अंदर आयरन डोम को अगर देखा जाए तो इजराइल का आयरन डोम दुनिया का सबसे ज़्यादा तजर्बाकार फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम माना जाता है, मगर जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होने के बावजूद भी हालिया बरसों में ये निज़ाम बार बार आजमाइश में नाकाम होता नज़र आया। हमास, हिजबुल्लाह, यमन के हौसी, उनकी जानिब से दागे गए रॉकेट्स और मिसाइलों ने आयरन डोम की कारकर्दगी पर संजीदा सवाल उठाए। अक्टूबर 2023 के बाद गज़ा और जनूबी लबनान से हज़ारों रॉकेट दागे गए, जिनमें से कई इजरायली शहरों तक पहुँचने में कामयाब हुए और बाज़ औक़ात एक ही वक्त में इतनी बड़ी तादाद में रॉकेट फायर किए गए कि आयरन डोम का निज़ाम या तो उन्हें ट्रेस न कर सका या इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा और कई मकामात पर शहरी इमलाक को नुकसान पहुंचा और निज़ाम की 100% कामयाबी के सरकारी दावे मुतनाज़े हुए। इन वाक़यात ने न सिर्फ इजरायली सिक्योरिटी माहिरीन को उलझन में डाला बल्कि आलमी सतह पर भी आयरन डोम की अफादियत पर सवालात पैदा किए। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का गोल्डन डोम मंसूबा एक जाविये से सामने आता है कि वो इस दिफाई निज़ाम को सिर्फ इजराइल के आयरन डोम का बड़ा वर्जन नहीं बल्कि उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर और मुकम्मल करार दे रहा है। और ट्रंप के मुताबिक गोल्डन डोम दुनिया के दूसरे कोने या खला से लॉन्च किए गए मिसाइलों को भी रास्ते में ही रोक सकेगा। और ये सिर्फ ज़मीन या फ़ज़ा नहीं बल्कि खला में भी दुश्मन के हथियारों से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखेगा। आयरन डोम की मौजूदा हुदूद और उसकी अमली नाकामियों ने दरअसल अमरीका को एक नए और ज़्यादा वसी तर दिफाई छतरी के ख्वाब की तरफ धकेला है और यही वो ख्वाब है जिसे ट्रंप गोल्डन डोम के नाम से सोना चमकाते हुए पेश कर रहे हैं। जबकि इसके बरक्स चीन के दिफाई निज़ाम को देखें जो आज की दुनिया में तेज़ी से तरक्की पाते हुए उन चंद निज़ामों में शुमार होता है जो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी सतह पर ताकत का तवाज़ुन बदलने की सलाहियत रखते हैं। बीजिंग ने अपनी फ़ौजी हिकमत अमली को मुकम्मल तौर पर टेक्नोलॉजी पर मरकूज़ किया जिसका मरकज़ एक हमा जहत, लचकदार और जदीद दिफाई हिसार बनाना था। चीन ने ज़मीनी, फ़ज़ाई, बहरी और खलाई शोबों में बैक वक्त अपने निज़ाम को वसअत दी और अब वो दिफा को सिर्फ सरहदों की हिफाजत तक महदूद नहीं समझता बल्कि उसे खला, साइबर स्पेस और मसनूई ज़हानत जैसे गैर रिवायती महाजों तक ले जा चुका है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ज़ेरे निगरानी चीन का दिफाई मॉडल
एक्टिव डिफेंस डॉक्ट्राइन के ऊपर मबनी है, जिसका मतलब यह है कि चीन का बज़ाहिर पहल नहीं करना बनता, लेकिन अगर वो खतरा महसूस करेगा तो शदीद और फौरी रद्द-ए-अमल देगा। इस तसव्वुर के तहत चीन ने अपने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को 3 तहों में तकसीम किया। पहले दर्जे पे रेडार सिस्टम्स दुश्मन की नकलो हरकत की बरवक्त इत्तला देते हैं। दूसरे दर्जे पे एंटी एयरक्राफ्ट और मिसाइल शिकन सिस्टम दुश्मन को हमले करके फ़ज़ा में रोकने की कोशिश करते हैं। और तीसरे दर्जे पे चीन के अपने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल सिस्टम दुश्मन पे जवाबी हमला करते हैं। जबकि चीन ने रूस के S-400 दिफाई निज़ाम को हासिल करके अपने फ़िज़ाई दिफा को मज़ीद मजबूत किया, मगर उस पर इक्तफ़ा ना करते हुए अब वो खुद अपने जदीद सिस्टम तैयार कर रहा है, जैसे HQ-9 जो अमरीकी पैट्रियट सिस्टम के हम पल्ला माना जाता है। इसके अलावा चीन हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में नुमायां पेशरफ्त हासिल कर चुका है। DF-17 मिसाइल ज़र फ़हरिस्त है जो आवाज़ की रफ्तार से कई गुना तेज़ है और मौजूदा दिफाई निज़ामों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यही वजह है कि अमेरिका और उसके इत्तहादी DF-17 को एक गेम चेंजर करार देते हैं। खलाई दिफाई मैदान में भी चीन ने दुनिया को हैरान किया जब उसने अपनी सैटेलाइट शिकन हथियारों का कामयाब तजर्बा किया। इसके अलावा चीन का बेडू नेविगेशन सिस्टम जो GPS का मुतबादिल है, वो ना सिर्फ चीनी फौज को खुद मुख्तार मालूमात फराहम करता है बल्कि मिसाइलों की दुरुस्त निशानदही में भी कलीदी किरदार अदा करता है। साइबर स्पेस में चीन एक मुकम्मल फौजी यूनिट चलाता है जो दुश्मन के नेटवर्क को मफलूज करने और हसास मालूमात तक रसाई हासिल करने के लिए सरगर्म है। और चीन का दिफाई निज़ाम महज हथियारों या मिसाइलों का मजमूआ नहीं बल्कि एक मरबूत और मुसलसल अपडेट होने वाला मॉडल है जिसमें जदीद मसनूई ज़हानत, ड्रोन्स, रोबोटिक्स और खलाई निगरानी शामिल है। यही वजह है कि चीन अब एक ऐसी ताकत में बदल चुका है जो ना सिर्फ अपना दिफा कर सकता है बल्कि किसी भी मुमकिना जारहियत का इंतहाई मुनज़्ज़म और बर्क रफ्तार जवाब देने की भरपूर सलाहियत भी रखता है। रूस का अगर दिफाई निज़ाम देखा जाए, दो ममालिक हैं जिससे अमेरिका को खतरा है, चाइना और रशिया। रूस का दिफाई निज़ाम दुनिया के उन चंद निज़ामों में शामिल है जिन्हें दहाइयों पर मुहित तजर्बात, जंगी आजमाइशों और मुसलसल तकनीकी जिद्दत ने एक पेचीदा और मोहलिक हसार में तब्दील किया है। सर्द जंग के दौर से अब तक रूस ने अपनी दिफाई हिकमत अमली को ऐसे अंदाज में तश्कील दिया कि वो रवायती जंगों के साथ साथ एटमी, फ़ज़ाई, बहरी और खलाई महाजों पर भी मौसर तौर पर मुकाबला कर सके। और रूस का दिफाई नज़रिया बुनियादी तौर पर स्ट्रेटजिक डिटरमेंस यानी रोक थाम पर मबनी है, जिसमें दुश्मन को महज मौजूदगी और ताकत के मुजाहिरे से ही पीछे हटने पर मजबूर कर देना असल मकसद होता है। रूसी दिफाई निज़ाम का मरकज़ उसका दुनिया भर में मशहूर S-400 है, जिसकी बैटरीज और उसका हाफ जो सिस्टम था वो हमने भारत के अंदर तबाह किया। लेकिन इस पे कोई शक नहीं है कि रूस का वह दिफाई निज़ाम बेहद मजबूत है, लेकिन चलाने वाले हाथ जो हैं वो कारीगर चाहिए। S-400 के बाद उसका S-500 डिफेंस सिस्टम भी है जो ना सिर्फ लड़ाका तैयारों, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बना सकता है बल्कि ये अपने हदफ को 400 किलोमीटर के फासले से तबाह करने की सलाहियत रखता है। S-500 जिसे प्रोमेथियस कहा जाता है, इससे भी ज़्यादा जदीद और ख़तरनाक निज़ाम है जो खला से आने वाले ख़तरात और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। रूस दावा करता है कि S-500 निज़ाम अमरीकी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थाड और इजरायली आयरन डोम से कहीं ज़्यादा ताकतवर और मुकम्मल है। रूस के मिसाइल प्रोग्राम की बुनियाद इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर है, जैसे RS-22 सरमेट जिसे शैटन 2 भी कहा जाता है और शैतान 2 भी कहते हैं। ये मिसाइल बैक वक्त 15 वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है और इसका हदफ दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है। इसे इस तरीके से तैयार किया गया है कि यह अमेरिका दिफाई निज़ामों को चकमा देकर अपने हदफ तक पहुंच सके। और उसके बाद रूस ने एटमी आबदोजों और एवनगार्ड जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स पे बड़ी सरमायाकारी की जो आवाज़ की रफ्तार से 27 गुना ज़्यादा तेज़ी से हरकत करते हैं और दुश्मन के किसी भी दिफाई निज़ाम को बआसानी फलांग सकते हैं। रूस का फ़ज़ाई दिफा मुकम्मल तय दर तय निज़ाम पर मबनी है। ये निज़ाम जो है ना सिर्फ दारुल हुकूमत मॉस्को बल्कि तमाम स्ट्रेटेजिक शहरों, फौजी अड्डों और जौहरी तंसीबात को एक घने शील्ड की तरह ढांपता है। इसके तहत पहले रेडार्स खतरे को पहचानते हैं, फिर S-300 और S-400, पैंट्सर S-1 और टॉर M2 जैसे सिस्टम्स जो हैं ये दुश्मन के तैयारों, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइलों या हाइपरसोनिक हथियारों को रास्ते में ही तबाह कर देते हैं। पैंट्सर सिस्टम खास तौर पे ड्रोन हमलों से बचाव के लिए तैयार किया गया है और रूस ने शाम में इसका अमली तजर्बा भी किया, जहां इसने कई इजरायली
इसराइली और तुर्क साख्ता ड्रोन्स को मार गिराया। रूस का दिफा सिर्फ जमीन और फजा तक महदूद नहीं बल्कि वो खला में भी सरगर्म है। उसने सैटेलाइट शिकन हथियार तैयार किए जिनकी मदद से वो दुश्मन के मवासलाती निज़ाम को मफलूज कर सकता है। इसके अलावा रूस के पास साइबर वारफेयर और इलेक्ट्रॉनिक जंगी टेक्नोलॉजी भी मौजूद है जिससे वो दुश्मन के रेडार, मवासलाती निज़ाम और हत्ता के मिसाइलों की रहनुमाई को भी गुमराह कर सकता है। यूं रूस का दिफाई निज़ाम एक ऐसा जाल बन चुका है जो सिर्फ किसी हमले से बचाव का जरिया नहीं बल्कि हमलावर को उल्टा मुहलिक नुकसान पहुंचाने की सलाहियत भी रखता है। इसका पूरा ढांचा दुश्मन को एक साथ कई जहतों पर उलझाने, थकाने और फिर फैसला कुन ज़रब लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया जो इसे दुनिया की सबसे खतरनाक फौजी ताकतों में से एक बनाता है। इसी बुनियाद के ऊपर अब गोल्डन डॉम का नज़रिया रखा गया है। देखिए कि किस हद तक उसे पाया तकमील तक पहुंचाया जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।